کہانیوں کے سلسلے افغانستان کی نئی کہانی میرا رانجھا۔ آئیے سنتے ہیں احمد ندیم قاسمی کی کہانی عظمیٰ گیلانی کی زبانی۔ سرکنڈے کے چھپر تلے ایک عورت بیٹھی تھی اور کچھ دور تالاب کے سبز پانی میں ایک دوشیزہ گاگر گھما رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، حد نظر تک میدان لرز رہا تھا۔ جوہر کے کنارے بیری کا ایک ٹنمن درخت دھوپ میں اکڑ گیا تھا۔ گاؤں کے جو 15-20 گھر تھے ان پر قبرستان کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چھپر اور تالاب کے وسط میں ایک بیمار کتیا دم لٹکائے ایک جھاڑی کی طرف رینگتی جا رہی تھی۔ اچانک عورت کھنکارتے ہوئے زور سے پکاری، ارے ماما، ارے مامی، کہاں جا کر مر گئی؟ تجھے گاگر گھمانے میں بڑا مزہ آتا ہے نا؟ ایک ڈبکی دے اسے اور لپک کر ادھر آ، میرے پاؤں ٹوٹ رہے ہیں۔ مامی نے گاگر سر پر دھر لی، پانی 2-1 بار چھلکا اور اس کے شانوں اور سینے پر آ گرا۔ اس کا لباس جسم سے چپک گیا۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے چھپر تک پہنچی۔ گاگر کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اتارنے کے لیے جو جھٹکا دیا تو دھڑاک کی آواز آئی۔ گاگر کی گردن امامی کی انگلیوں میں اور دھڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھرا پڑا تھا۔ پانی ایک ندی کی صورت میں دور تک بہتا چلا گیا۔ عورت گھاٹ سے اچھل کر امامی کے پاس آئی اور بغیر سوچے سمجھے 4-5 دھوتر جما دیے۔ امامی کے گال لال پڑ گئے، آنکھوں میں پانی آ گیا، ہونٹوں کو ترتھری چھوٹ گئی، بت بن کر رہ گئی اور اس کی باتیں سنتی رہی۔ ڈائن، تیرے نخروں کی کوئی حد بھی ہے؟ پرسوں پیالہ توڑ ڈالا، کل اپنے چچا کا حقہ تازہ کرتے کرتے اسے اوندھا مار دے مارا، آج گھڑے کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور ٹک ٹک مجھے گھور رہی ہے مجھے، جیسے میں نے ہی تو کہا تھا کہ اسے زمین پر دے مار۔ بدذات، تو میری گردن پر سوار ہوئی جا رہی۔ امامی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگی کہ میرے لیے اب تک میرے چچا جی کی ایک ٹوٹی کھاٹ کے سوا مجھے کچھ بھی میسر نہ آیا۔ میں کون ہوں؟ میں یہاں کیسے آئی؟ میرے ماں باپ کون ہیں؟ میں پیدا ہوتی اس دنیا میں اجنبی بن کر کیوں رہ گئی؟ اس کے دل سے یہ آوازیں روزانہ اٹھتی تھیں اور اس کی رگ رگ میں آگ بھڑکا کر پھر دل کی گہرائیوں میں سو جاتی تھیں۔ جیسے کھلے سمندروں میں طوفان آتے ہیں، تہوں سے موجوں کو اوپر اچھال کر چلے جاتے ہیں اور موجیں پھر پیچھے جا کر بہتی رہتی۔ چچی کے پاؤں کنڈلیاں دباتے دباتے اس کی انگلیوں میں ورم آ جاتا تھا، اور جب اس کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑنے لگتی تو چچی کا بھاری ہاتھ اس زور سے اس کے تالو پر پڑتا کہ وہ سمجھتی کہ اس کا سر 2 ٹکڑے ہو کر رہ گیا ہے۔ کئی بار وہ اونچی چٹانوں سے نیچے کود پڑنے کو تیار ہو جاتی، کئی بار خوفناک تالابوں میں ڈوب مرنے کا سوچتی، لیکن اسے جو چٹان ملتی وہ بہت پست ہوتی اور جو تالاب ملتا وہ پایاب ہوتا، اور پھر وہ مرنے سے کچھ ڈرتی بھی تھی۔ اس نے اپنی ایک سہیلی کو دم توڑتے دیکھا تھا اور وہ سوچا کرتی تھی کہ مرنا ضرور کوئی تکلیف دہ مرحلہ ہے، کیونکہ اس کی سہیلی موسم سرما میں نرم و گرم بستر پر لیٹے ہوئے بھی پسینے سے شرابور ہوتی جا رہی تھی۔ امامی کو اپنے متعلق یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا، لیکن گاؤں کے سارے خوشرو نوجوان اس کی محبت کا دم بھرتے تھے، اور ایک نوجوان دوست محمد کے متعلق تو یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ وہ ہیر گاتے گاتے ہیر کی جگہ امامی کا نام لگا دیتا ہے اور رانجھے کی جگہ اپنا۔ چوپال والے اسے اس پر جھڑکتے تھے اور وہ کہتا تھا کہ بھئی سچی بات کو چھپانا اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ امامی نے بھی اڑتی سی خبر سنی کہ دوست محمد نے رات کو ہیر کی جگہ امامی کا نام لیا تھا، اور اگر چچا جی سن پائیں تو۔ مگر امامی کے گرد و غبار سے اٹے ہوئے دل نے یک بیک ایک پھریری لی۔ اسے زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کے سینے میں ایک دل ہے اور وہ دھڑکتا بھی ہے۔ وہ جب غلیظ جوہر سے پانی بھرنے گئی تو بہت دیر تک سبز پانی میں اپنے عکس دیکھنے کی کوشش کرتی رہی اور گاگر اٹھاتے ہوئے بڑے شرمیلے اور مدھم مگر میٹھے انداز میں بولی، میرا رانجھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے بیری کے خشک پتوں پر کسی نے ہولے سے قدم رکھا ہے اور کوئی اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس چلچلاتی دھوپ میں کسی کا اس گندے بدبودار جوہر پر کیا کام؟ اس نے خوفزدہ ہرنی کی طرح ادھر ادھر دیکھا۔ گاگر نے جھلک کر اس کا منہ بھگو دیا۔ ایک طرف سے دوست محمد ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ پلٹ کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ مامی، کون ہو تم؟ اس نے مڑے بغیر پوچھا۔ تمہارا رانجھا، میرا رانجھا۔ مامی نے گاگر کو ایک جگہ جماتے ہوئے اپنے آپ سے سرگوشی کی۔ اسے اکثر راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، مگر اس رات کی بیداری میں ایک کیف تھا جو اسے بری طرح مخمور کیے ڈالتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یوں ہی جاگتی رہے، ابد تک جاگتی رہے، اس کے پپوٹے یوں ہی بھاری رہیں، اس کا سینہ یوں ہی جلتا رہے، اور اس کا رانجھا، وہ آگے کچھ بھی نہ سوچ سکی۔
वो नहीं जानती थी कि आगे क्या सोचे। गलीज जौहर से वो अपने पीने के लिए पानी भरने जाती थी, वरना चचा के लिए तो चश्मे से पानी आता था। वो खुद भी चश्मे पर चली जाती, मगर घर के कामकाज में हरज होता था, और चची की गालियां इतनी सख्त थीं कि एक बार मस्जिद के मौलवी जी ने सुनकर कानों में उंगलियां ठोस ली थी। दूसरे दिन वो फिर उसी वक्त जौहर पर गई, इधर उधर नजर दौड़ाई, झाड़ियों के आसपास आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही, उसे कुछ नजर न आया। मेरा रांझा, उसने कदरे बुलंद आवाज में कहा। उसे एक अंगड़ाई आ गई, बाजू पूरे जोर से ताने और सर पीछे फेंकते हुए पुकारा, उफ तो। वो समझी कोई उसके करीब खड़ा है। उमामी, किसी ने उसके कान में सरगोशी की। मेरी हीर, मेरा रांझा। उसने एक और अंगड़ाई ली और गागर भरने के लिए पिंडलियों तक कपड़ा उठाकर जौहर में घुस गई। गम 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 गागर भर गई और उसने एक बार फिर उधर देखा। छम छम छम, उसका जी भर आया। गागर सर पे रखी और छप्पर की तरफ जाने लगी। उमामी, कोई बेरी के तने की ओर से बोला। कौन? उसने पलट कर पूछा। दोस्त मोहम्मद दरख्त तले खड़ा था। तुम्हारा रांझा। आज वो हौले हौले कदम उठाती छप्पर तले आ गई। वहां पहुंचकर घड़ा रखते हुए उधर देखा। दोस्त मोहम्मद उसी हालत में खड़ा था। उमामी को जैसे किसी ने हवा में उछाल दिया, चकरा सी गई। अचानक चची की आवाज आई, अरे खड़ी किसको ताक रही है? वो छोकरा कौन है? जौहर पर इसी से इशारे हो रहे थे ना, बदसात कमीनी। इसीलिए जौहर पर जाती, इसीलिए सारा दिन वहां गुजारती है। दिन दिहाड़े घर के सामने ये लक्षण? क्या तूने मुझे अंधा समझ रखा है? अरे डायन, कमारी लड़की जो इन छोकरों से यूं तालाब में कुश्तियां खेले। जमाना उलट गया, आंखों में हया नहीं रही। क्या अंधेर नगरी है कि मेरे सामने ही अपने आशिक मियां से इशारे हो रहे थे? अरे तुझे हैजा हो जाए, तूने तो मेरे मालिक की नाक काट कर रख दी। तुझे कब्र बुलाए वामी, ये तूने क्या किया? गांव वालियां दौड़ी हुई आई। चची की आवाज में एक जादू था, सब खिंची चली आई। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात है? सवालात का तांता बन गया। सब उमामी को झुकी भवों और चुपती निगाहों से घूरने लगे। एक बुढ़िया चारपाई पर खड़े होकर दोनों हाथों से इशारा करते हुए बोली, अरे एक पल के लिए तो चुप हो जाओ। तुम्हारी जबानें हैं कि कैंचियां? कब्बों की तरह काय काय किए जा रही हो, कुछ कहने सुनने भी दो। चुप हो जाओ एक पल के लिए। खामोशी छा गई। उमामी छप्पर में एक बेजान सुतून की तरह दम बखुद खड़ी थी। किसी एहसास ने उसके कदमों में बेड़ियां डाल दी थी और दिल में बिजलियां भर दी थी। उसकी आंखें झपकते झपकते रुक गई, उसका दिल धड़कते धड़कते ठहर गया। ये क्या हो रहा है? अब क्या होगा? ये क्या हो गया? बुढ़िया ने चची से पूछा, ले अब बता बहुरानी क्या बात है? चची अब रो रही थी। सिसकियों और हिचकियों के हुजूम में थरथराती हुई आवाजें बोली, क्या बताऊं, हम तो जीते जी मर गए। खानदान की लाज मट्टी में मिल गई, आबरू की जड़ कट गई। मैंने कहा था तुम्हारे बेटे से, कहा था कि नागन को पालना दानाई नहीं है। मौला जाने कहां से उठा लाया और बेटी बनाकर पालने लगा। अब पता चलेगा कि तुम्मा चाहे अंगूरों में बढ़े पर होगा कड़वाई। मेरे सामने खड़ी जौहर पर किसी आवारा छोकरे से इशारे कर रही थी। मेरी आवाज सुनकर वो तो खिसक गया और खुद छप्पर तले खड़ी मुझे यूं घूर रही है जैसे बस मुझे चबा ही डालेगी, कच्चा चबा डालेगी। परसों से आधी आधी रात को मैं इसका बिस्तर भी खाली देख रही हूँ। आनन फानन ये खबर सारे गांव में फैल गई कि उमामी अपने आशिक से इशारे कर रही थी कि चचा चची ने आ लिया, और अब भीगी बिल्ली बनी छप्पर तले बैठी नाखून से मिट्टी कुरेद रही। नौजवानों में चिमगुइयां होने लगी कि वो कौन था जिसने जौहर पर जाकर दिन दिहाड़े इस मगरूर छोकरी से बात करने की जुर्रत की। उसकी आंखों में तो बिजली की चमक है, यूं मालूम होता है कि जैसे किसी को आग भरकर देखेगी तो वो भस्म कर डालेगी उसको। दोस्त मोहम्मद होगा, दोस्त मोहम्मद, एक गबरू बोला। कल हीर की जगह उमामी पढ़ रहा था ना। अरे छोड़ो भी, इसमें इतना बल कहाँ है, कोई और मनचला होगा। दोस्त मोहम्मद भी उस मजमे में मौजूद था। बोला, हाँ हाँ कोई मनचला होगा। उसका मन फैलने लगा और एक ही पल में वो सारी कायनात पर मोहित हो गया। सारी कायनात जिसमें दोस्त मोहम्मद और उमामी के सिवा और कुछ न था। वो मबरूद सा हो गया, जैसे खड़े खड़े सो गया है। एक दोस्त ने उसे झंझोड़ा, क्या सोच रहे हो? अरे ये सोच रहा हूँ कि वो मन चला मुझे मिले ना तो उसे गले से लगा लूं। सब गबरू हंसने लगे। दोस्त मोहम्मद के जी में आई कि मैं इन गबरुओं पे ना हंसूं और वो इन गबरुओं पर हंसने लगा। अब जौहर पर कौन मिले? चची खाट सामने डालकर बैठ जाती और उमामी घड़ा पानी में डालकर सर पर रखती और छपाक से छप्पर तले पहुंच जाती। उसके चचा ने भी उसे बहुत बुरा भला कहा, इसलिए अब भलाई इसी में थी कि मन की आग दबाकर बैठ जाए और जो पड़े वो झेले।
उमामी की हालत उस फूल की सी हो गई थी जो अपने ही बोझ से एक तरफ झुक गया हो, कोपल टूट गई हो और अब फूल आहिस्ता आहिस्ता मुरझा रहा। एक रात वो खाट पर पड़ी थी। गहरे से आसमान पर टिके हुए नन्हे नन्हे सितारे पसीने की इन कतरों की तरह मुस्तरिब नजर आ रहे थे, जो किसी प्यासे इंसान के माथे पर आहिस्ता आहिस्ता उभर रहे हैं। दूर जौहर के किनारे बेरी का दरख्त अपने बाजू आसमान की तरफ उठाए किसी बीमार मुलजिम की तरह खामोश खड़ा था। न जाने उसे क्या ख्याल आया, वो उठ खड़ी हुई। चची गहरी नींद सो रही थी, चचा कहीं बाहर गए हुए थे। वो खिसकती हुई छप्पर तले आ गई। उसे बेरी के दरख्त से डर सा महसूस होने लगा, जो स्याह आसमान के मुकाबिल स्याह बाजू फैलाए जैसे उसका कलेजा नोच लेने को मुंतजिर खड़ा था। लेकिन वो लड़खड़ाते और रुके रुके कदमों से आगे बढ़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता, हौले हौले, जैसे उसके पांव तले कांच बिछा हुआ है और उसे उसके टूट जाने का खतरा दामन गिर है। जौहर के किनारे पहुंची तो काले पानी में सितारों के धुंधले धुंधले अक्स देखकर घबरा गई। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे वो नीचे आसमान की तरफ गिर जाए। नीचे ऊपर आसमान, और जैसे वो बीच में किसी नामालूम कुव्वत की वजह से मुअल्लक भी। वो घबराकर वहीं बदबूदार कीचड़ पर बैठ गई और खौफजदा होकर आंखें बंद कर ली। बेरी के दरख्त के तले किसी ने खुश्क पत्तों पर धीरे से कदम धरा। भूत भूत, उसका दिल धक धक करने लगा। दूसरा कदम, तीसरा, चौथा। उमामी को जैसे किसी ने आनी शिकंजे में जड़ लिया हो। वो घबरा गई, जबान तालू से लग गई। कदम मुड़ गए और बेरी के तने का चक्कर काटकर फिर उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खुश्क पत्तों पर पड़ने लगे। उसकी सांसें बगुले बन गई। यकायक सरगोशी की सी आवाज आई, मेरी हीर, मेरा राजा, मेरा राजा। उमामी ने जेरे लब ये अल्फाज दोहराए। गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा। एक साया बेरी के तने के इर्द गिर्द तवाफ कर रहा था। कौन हो तुम? घबराई हुई आवाज में वो बोली। इंसान। साया उसके करीब आ गया और उस पर छुप गया। तुम कौन हो? उमामी, मेरी हीर। नीचे जौहर के काले पानी और ऊपर आसमान के स्याह सीने पर सितारे नाचने लगे। बेरी का दरख्त अपने बाजू फैलाने लगा। तालाब के किनारे खुश्क काई में किसी झींगर ने नींद में नगमा छेड़ा और चुप हो गया। गांव में दो चार कुत्ते एक साथ भौंके और फिर अचानक खामोश हो गए। कायनात ने एक करवट बदली। उमामी उठ खड़ी हुई। तुम कौन हो? तुम्हारा रांझा। उस दिन तुम मुझे घूरते रहे। हाँ, बहुत बदनामी हुई। हाँ, मैंने भी सुना था। क्यों आए हो तुम यहाँ? रोज आता हूँ। रोज आते हो? हाँ, रोज आता। क्यों? तुम्हारे लिए। मैं तो छप्पर के उस पार सो रही होती हूँ और मैं छप्पर के इस पार जाग रहा होता हूँ। क्यों? तुम्हारे लिए। क्या मतलब? क्या बताऊं? तुम मेरा पीछा छोड़ दो। क्यों छोड़ो पीछा? नहीं, ये अच्छी बात नहीं होती। लेकिन बदनामी तो हो चुकी। खामोशी छा गई। दोनों की सांसों की आवाज एक दूसरे को सुनाई देने लगी। दोनों सर झुकाए कीचड़ में उंगलियां फेरने लगे। अच्छा, अब जाती हूँ। फिर कब मिलोगी? कल। यहीं? हाँ, यहीं। वो यहाँ से तेज तेज कदम उठाती छप्पर तले आ गई। मुड़कर देखा, अंधेरा वसी मैदान सनसना रहा था। क्या ये ख्वाब था, ये बेदारी? उसने अपने बाजू पर जोर से चुटकी ली। वो जाग रही थी। मेरा रांझा। उसने इतनी गहरी सांस ली कि उसका सीना बहुत देर तक उभरता ही चला गया। उसकी चची अभी तक सो रही थी। वो अपनी खाट पर पड़ रही और सुबह तक यूं ही पड़ी रही। आज उसे बुखार सा हो रहा था। मुझे आज बुखार हो रहा है चाची, मैं कोई काम नहीं कर सकूंगी। वो अला सुबह अंगड़ाई लेकर थकी थकी आवाज में बोली। अरे तुझे बुखार ले जाए, तू अब मेरे काम की नहीं रही। चची ने नाक चढ़ाते हुए जवाब दिया। वो तमाम दिन दीवार से लगी बैठी रही। पड़ोसने आई और चची से पूछने लगी, क्या हो गया उमामी को? साफ सूख गया बखत मारी को। उमामी जी जी में चची पर मुस्कुरा दी। चचा आए तो पूछने लगे, क्या हुआ उमामी? कुछ नहीं चाचा। चची बोली, सुबह से बुखार का बहाना लेकर बैठी है। सच कहूं, इसके होते हुए मैं तो जी नहीं सकूंगी। चचा ने उमामी की नब्ज देखी। हो बड़ा गर्म है इसका जिस्म। अरे पड़ोसन से चाय की चुटकी तो मांग ला, उमामी को तो बहुत सख्त बुखार हो रहा है। उमामी जी जी में चचा पर मुस्कुरा दी। रात हो गई। चचा फिर किसी काम पर चले गए और चची को ताकीद कर गए कि उमामी की देखभाल करे, कहीं वो बुखार की शिद्दत से रात को बेहोश ना हो जाए।
मौका पाकर उमामी खाट से खिसक कर जौहर की तरफ चल दी और उधर बेरी के तने के पास से एक साया खिसका और उसकी तरफ आया। उमामी, दोस्त मोहम्मद, मेरी हीर, मेरा रांझा। उमामी ने बहुत मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए, बहुत ही मुश्किल से और बहुत आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वो समझी कि उसने अपने दिल का सारा बोझ उतारकर जौहर के गलीज पानी में फेंक दिया है और जैसे अब उसके पर लग गए हैं और वो उड़कर इस टुनमुन बेरी के आखिरी फुनंग पर बैठकर अपने राजा के हमरा हीर वारिस शाह गा रही। मैं बहुत देर से तेरा मुंतजिर खड़ा था। मैं तो समझी थी कि तुम अभी तक आए नहीं होगे। नहीं, मैं शाम से यहीं बैठा हूँ। हाय, मैंने तुम्हें एक बार खाट पर बैठे देखा था। अच्छा। जौहर के किनारे झिंगर चीख कर चुप हो गया और दूर गांव में कुत्ते एक साथ भौंके और खामोश हो गए। उमामी, दोस्त मोहम्मद ने राजदाराना लहजे में कहा, उमामी, तुमने कभी ये भी सोचा है कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ? उमामी खामोश रही। उमामी, मैं इसलिए आता हूँ कि तुमसे वादा लूं कि तुम मेरे बगैर और किसी की नहीं बनोगी। वादा करो। उमामी रो दी, बोली, मैं तो चचा चची के बस में हूँ दोस्त मोहम्मद। उसके बाद एक रोज दोस्त मोहम्मद शहर के सफेद पोशों को इकट्ठा करके उमामी के चचा के यहाँ आया और उमामी के रिश्ते का ताल्लुक। वो भी शायद उमामी से दामन छुड़ाने का मुंतजिर बैठा था। पुकार उठा कि भाई हाँ, देने का माल है, इनकार कैसे करूं। शादी से एक दिन कबल शाम का खाना खाकर उमामी दीवार से लगी बैठी थी कि छप्पर में उसे दोस्त मोहम्मद की आवाज सुनाई दी। वो खिसकती खाट की ओट में छप्पर के करीब हो गई। चची कहीं पड़ोसन में चली गई थी। उसका चचा दोस्त मोहम्मद से बातें कर रहा था। बेटा दोस्त मोहम्मद, उमामी को तुम्हारे हाथ में सौंप देने से पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि तुम्हें एक राज बता दूं। मुबादा बाद में तुम्हें ये बात मालूम हो और तुम वो कर बैठो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैं अपनी आखिरत खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखूंगा। तुम जानते हो, उमामी मेरी बेटी नहीं है, लेकिन तुम्हें यह खबर नहीं कि मैंने उसे कहाँ से हासिल किया। मुद्दतें गुजरी, मैं भी तुम्हारी तरह जवान था। मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई। बहुत अरसे तक हम एक दूसरे की मोहब्बत का दम भरते रहे और आखिर एक रोज मैं ये सुनकर बहुत चक्कर रह गया कि वो माँ बनने वाली है और बाप, वो मैं ही कमबख्त था। दोस्त मोहम्मद, तुम अभी नातजुर्बाकार हो। तुम नहीं जानते कि मेरे दिल पर क्या गुजरी। मुझे उस लड़की से मोहब्बत थी और अब आम दुनिया की तरह मैं उसे यूं बेआसरा उजाड़ राह में नहीं छोड़ सकता था। मैंने उसे इस जौहर की इस बेरी तले यकीन दिलाया कि मैं उसका हूं और उसी का रहूंगा। मैं उसे घर से भगाकर एक खंडर में ले गया। वहां उसकी एक बेटी हुई और वो बेटी तुम्हारी अमामी है। अमामी की आंख की पुतलियां जैसे चिंगारियां बनकर उबल पड़ी। उसने चाहा के खाट के पाए से अपना सर फोड़ डाले। नाजायज औलाद। उमामी को महसूस हुआ जैसे वो उस हकीर चुहिया से भी कमतर है जो गली में किसी पत्थर से पिचक कर कूड़े में मिल गई हो। बहुत देर के बाद दोस्त मोहम्मद बोला, उसकी माँ? चाचा बोला, वो उसी दिन मर गई। खंडर में सच्चे की खबरगिरी कौन करता? वो उसी दिन मर गई और मैंने उसे चंद दोस्तों की मदद से दफना दिया और बच्ची को उठाकर घर ले आया। लोगों में ये मशहूर कर दिया कि जंगल में बेयारो मददगार लड़की पड़ी थी, मैंने उसे उठा लिया। दोस्त मोहम्मद, ये बातें सुनकर तुम्हारे दिल में उमामी से नफरत तो नहीं पैदा हो गई? नहीं। उमामी तमाम रात जागती रही। उसकी आंखें सूज गईं, कपड़े भीग गए, होंठ फट गए। सुबह उठी, जौहर पर पानी भरने के लिए चली गई। एक बार कीचड़ से लथपथ एक बीमार कुतिया उसकी राह काट कर झाड़ी में घुस गई। एक तरफ गांव का बूढ़ा कहार गधा लिए आ रहा था। आज सुबह सुबह किधर गए थे चाचा? उमामी ने पूछा। कस्बे में। क्यों? दोस्त मोहम्मद का असबाब लारी के अड्डे पर छोड़ने गया था। कहाँ चला गया वो? बन्नू। वो चला गया बन्नू, वहां उसकी नौकरी लग गई। अच्छा। उमामी के हाथों से उसकी गागर छूटकर जौहर में जा गिरी। लहरों के दायरे झिलमिल करते दूर तक फैल गए और बेरी का टुनमुन दरख्त बाजू हिला हिलाकर नाचने लगा।